Good afternoon to everyone present here. So, myself, Vipin Bhati, I am Assistant Professor, IMT College of Law, Greater Noida. So, today we are here for discussing the topic arrest. So, arrest is given under Chapter 5 of Criminal Procedure Code 1973. It's covers section 41 to 53, 51, 52, 53. So today we are discussing this topic. What is the procedure of arrest, and what are after the procedure? What are the rights of the arrested person who arrested by the police personnel or by magistrate or by any private person? So before starting, we now we came to know what is the meaning of arrest. So arrest is not defined anywhere in this code CRPC 1973. So it is not only the deprivation of liberty or physical restraint, only the deprivation of liberty by legal authority or at least by apparent legal authority in a professionally competent and adept manner amounts to arrest. So the requirement is deprivation of liberty, one. Second, by legal authority. Third, at least by apparent legal authority in a professionally कॉम्पिटेंट. वो जो लीगल अथॉरिटी वो क्या है, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, अडेप्टेड मैनर में होनी चाहिए. उसको क्या बोलेंगे हम, इट्स अमाउंट्स टू अरेस्ट. सो नाउ वी कैन से दैट द deprivation of liberty by legal authority who is competent to make the arrest is called arrest. ठीक है. So when the restraint is total and deprivation of liberty is complete, that would amounts to arrest. Thus, arrest means apprehension of a person by legal resulting in deprivation of his liberty. Okay. So arrest of persons is defined under section 41, chapter 5 of Criminal Procedure Code 1973. So section 41 says tells about the arrest without warrant. So arrest may be by two ways. First is arrest with warrant, or second arrest without warrant. So in what cases a police officer or any other legal authority which is empowered by the court can arrest any person without warrant. So these are the cases. The person who commits in the presence of a police officer any cognizable offenses. पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंट में किसी भी व्यक्ति ने उसके सामने कोई भी ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस किया है तो उसको वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, बिकॉज द पुलिस ऑफिसर इज एम्पावर्ड बाय सेक्शन 41 टू द ऑफेंडर अरेस्ट विदाउट वारंट. ठीक है. सो फर्स्ट इज हु कमिट्स a cognizable offense in the presence of police officials. Second, the person against whom a reasonable complaint has been made or an information has been received or a reasonable suspension of any offense, of any cognizable offense. The punishment for this offense is not less than 7 years or which may extend to 7 years or more. So कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कोई एक ऐसा कंप्लेंट मिला है या फिर वो सस्पिशियस है, वो सस्पेक्ट है, हम अपनी लीगल भाषा में क्या बोलते हैं, वो सस्पेक्ट है, तो कोर्ट को लगता है कि कोई वो सस्पेक्ट है, फिर किसी पुलिस ऑफिसर को ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन ये प्रतीत होता है कि वो सच एंड सच पर्सन इज सस्पेक्टेड ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, द पनिशमेंट फॉर विच इज 7 years or more. So the police officer can arrest such person without warrant. I think it would be clear. And third, is to prevent such person from causing the evidence. देखिए कोई भी ऑफेंडर है, यदि उसने ऑफेंस किया है तो वो क्या करेगा, जो भी उसके अगेंस्ट ऑफेंस एविडेंसेस हैं, जिन एविडेंसेस से ये प्रूव हो सकता है कि दिस पर्सन हैज कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस. So now he is trying to disappear or tampering such evidence. So
to prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner. So यदि पुलिस को ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति सबूत के साक्ष्य के साथ साथ मतलब साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसमें टेम्परिंग कर सकता है, फैब्रिकेशन कर सकता है, तो उस पर्सन को क्या है, पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, कि कोई भी ऐसा पर्सन द टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस। तो अभी हाल ही में पिछले महीने ये न्यूज में भी रहा है कि गवाह को गोली मार दी गया है। फिर अभी अतीक वाले केस में आपने सुना भी था, और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं कि गवाह को जो भी विटनेसेस होते हैं उनको थ्रेट दी जाती है, उनको इंड्यूस किया जाता है, ठीक है, जिससे कि वो कोर्ट में जाके गवाही न दें, कोर्ट या फिर जो भी उस केस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उन फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो उस सब को रोकने के लिए क्या है, पुलिस ऑफिसर ऐसे किसी भी ऑफेंडर को जो जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और ये लगता है कि वो किसी भी विटनेसेस को या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को जो उस केस के जो भी फैक्ट्स हैं उसको वो इंड्यूस कर सकता है, उसको थ्रेट दे सकता है, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द एंड ऑफ जस्टिस, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट सच पर्सन विदाउट वारंट। क्लियर आई थिंक। सो नेक्स्ट इज हु ऑब्स्ट्रक्ट्स ए पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर है, ठीक है, तो वो उसको अपनी ड्यूटी नहीं करने दे रहा है। सपोज वो अरेस्ट करने गया है किसी पर्सन को, तो वहाँ पे वो जो आसपास है वो उसको अरेस्ट नहीं करने दे रहे हैं। आजकल बहुत सारे न्यूज में रहता है कि किसी एक ऑफेंडर को पुलिस ऑफिसर, पुलिस की जो पलटन है वो अरेस्ट करने गई, लेकिन क्या है, और उसके परिवार वालों ने, उसके नॉन ने या फिर उसके गैंग के आदमियों ने उसको क्या है, पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट नहीं करने दिया। उनकी जो ड्यूटी थी उसको ड्यूटी करने से वो उसको रोकते हैं। तो उस केस में भी क्या है, पुलिस ऑफिसर को पावर है कि ही कैन अरेस्ट सच पर्सन विदाउट वारंट ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए डेजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। यूनियन गवर्नमेंट के जितनी भी आर्म फोर्सेस है, चाहे हमारा नेवी हो, एयर फोर्स, नेवी हो, नेवल फोर्सेज हो, एयर फोर्सेज हो, या फिर हमारी आर्मी हो, थल सेना हो, उससे कोई भी व्यक्ति यदि डिजर्टर है, मतलब कि डिजर्टर का मतलब वो वहाँ से भगौड़ा है, उसको छोड़ के आया है, कोई ऑफेंस किया है, तो ऐसे किसी भी पर्सन को पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि ही कैन अरेस्ट सच पर्सन विदाउट वारंट आल्सो। Next, who has been concerned or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received, or an act or any act committed at any place out of India, और वो इंडिया में आ गया है, तो उस पर्सन को विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मेन केसेस इन विच द पुलिस ऑफिसर arrest any person without warrant also under section 41. So the cases are, again we can repeat it. First is who commits in the presence of a police officer any cognizable offense. Second, against any suspected person against whom a reasonable information has been received that he has committed any offense, the offense for which the punishment is 7 years or more. Third is to prevent such person from causing the evidence of the offense or tampering with the evidence. Fourth is टू प्रिवेंट एनी वो विटनेसेस को थ्रेट करता है या इंड्यूस करता है। फिफ्थ है हमारा हु ऑब्स्ट्रक्ट्स पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। सिक्स्थ है हमारा कि हु इज द डिजर्टर ऑफ आर्म फोर्सेस। सिक्स्थ है हमारा कि उसके अगेंस्ट कोई ऐसी कंप्लेंट मिली है, सस्पिशियस है कि वो बाहर से भाग के यहाँ पे आया किसी अदर कंट्री से और वो इंडिया में आ गया है, तो पुलिस ऑफिसर क्या उसको विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द केसेस इन विच द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट ऑल्सो। अब द क्वेश्चन इज, अरेस्ट तो कर लिया हम पुलिस ऑफिसर ने, तो उसको रखेंगे कहाँ पे? तो उसके लिए क्या है कि कंट्रोल रूम होते हैं, कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम बनाएगी जो हमको 41C में दिया हुआ है, जहाँ से सारा कुछ वो कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अरेस्ट। अरेस्ट कितने टाइप का होता है? तो अरेस्ट
या फिर we can say that who has the power to arrest any offender. So first, and the police officer. Generally the police officer arrest any person either with warrant or without warrant. Second is arrest by private person, which is given under section 43. So section 43 empowers any private person uh, to arrest any person. So what is the procedure? What is the provision? Any private person may arrest or cause to be arrested any person any private person may arrest or cause to be arrested any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense. So what are the criteria? The offender commits any cognizable and non-bailable offense. So in these two cases, a private person arrest any offender. और third, any proclaimed offender, कोई भी भगोड़ा है उसको अरेस्ट कर सकता है. एंड विद और आफ्टर दैट अरेस्ट के बाद क्या होगा? विदाउट अननेसेसरी डिले, without unnecessary delay shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer. So section 43 says that आपने अरेस्ट कर लिया, कोई प्राइवेट पर्सन ने किसी ऐसे ऑफेंडर को अरेस्ट किया जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस या कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है या कोई वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, तो उसके तुरंत बाद क्या है, उसको विदाउट अननेसेसरी डिले, उसको डिले नहीं करना है, उसको तुरंत जो भी कंसर्न एरिया का पुलिस ऑफिसर है, पुलिस स्टेशन है या फिर जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर है उस एरिया का, उसको सौंप देना है. ठीक है, खुद से ही मतलब कि ये सारे नहीं करना है, बस पावर इतनी दिया है हमको लॉ ने कि आपके सामने किसी ने बेलेबल और सॉरी नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, सो यू कैन अरेस्ट ऑल्सो. और इन द एब्सेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू टेकन इन द कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. उसको जो यदि कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है आसपास, तो उसको क्या है, जो आपका पास वाला पुलिस स्टेशन है आप उसको वहाँ पर सौंप सकते हो, उसकी कस्टडी वहाँ पर दे सकते हो. ठीक है, आपको कानून को हाथ में नहीं लेना है. ठीक है. सेकंड इज इफ देयर इज रीजन टू, किस कंडीशन में कर सकते हैं? if there is reason to believe that such person comes under the provision of section 41, a police officer shall re-arrest him. और यदि अब क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है, अब जो ऑफेंडर है वो अपना क्लेम करता है कि आपके पास वारंट नहीं है, ये सब है, तो पुलिस ऑफिसर इसका क्लॉज 2 हम ये एम्पावर करता है कि पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट ऑल्सो. ठीक. So this is the second type. Third is arrest by magistrate. So any magistrate, either judicial magistrate or a executive magistrate, so may arrest any person which is empowered by by section 40 of Criminal Procedure Code 1973. So when any offence is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial within his local jurisdiction, उसके jurisdiction में उसने उसके jurisdiction में जो भी offense किया है, चाहे वो executive magistrate हो या judicial magistrate हो, he may himself arrest or order any person to arrest the offender. वो या तो magistrate खुद arrest कर ले या फिर उसको arrest करने का order दे, तो उसको क्या है, वो arrest कर सकता है. and may thereupon subject to the provision herein contained as to the bail, commit the offender to custody. So any magistrate, whether executive or judicial, may at any time arrest or direct the arrest in his presence within local jurisdiction. ठीक है, जो भी कंसर्न पुलिस ऑफिसर उसको ऑर्डर कर देगा, जो भी अथॉरिटी है उसको अरेस्ट करने की उसको ऑर्डर कर देगा. ठीक है. सो दिस इज द 3 types of arrest which is given under in IPC chapter 5, arrest by police officer, arrest by private person or arrest by magistrate. ठीक है. So now the question is, what is the procedure? So this is all about the arrest. So now what is the procedure after arrest? So first of all, the procedure is
इन्फॉर्म द कंसर्न पर्सन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जब एट द टाइम ऑफ अरेस्ट द पर्सन, उसको क्या है, जो भी पुलिस ऑफिसर है उसको क्या है, सेल बियर ए नेम क्लियर एंड विजिबल नेम प्लेट, उसको एक नेम प्लेट पहना होना चाहिए वो, ठीक है, जिससे क्लियर दिखे कि वो कौन सा पुलिस ऑफिसर है। After that, prepare a memorandum of arrest which shall be attested by at least one witnesses who is the member of the family of the person arrested or a respectable member of the locality where the arrest is made। तो एक क्या है, एक डायरी में वो अपनी जो उनकी रोज नामचा डायरी होती है उसमें वो उसको रिकॉर्ड करेगा अरेस्ट का, कि किस समय अरेस्ट किया, किस अवस्था में अरेस्ट किया। ठीक है, और वो सारा प्रोसीजर लिख के वो जो मेमोरेंडम है, वो जो डायरी है, वो क्या है, एटलीस्ट एक विटनेस से क्या है वो साइन कराना है, जो उसके फैमिली मेंबर हो या फिर नॉन हो या फिर उसका कोई पड़ोसी हो, कोई भी रिस्पेक्टेबल जो वहाँ का मुख्य आदमी होता है। जनरली क्या होता है, प्रधान वगैरह से वो साइन करा देते हैं कि हाँ हमने इस पर्सन को इस टाइम पे इस ऑफेंस के लिए हमने उसको अरेस्ट किया है। एंड आफ्टर दैट काउंटर साइन बाय द अदर पर्सन अरेस्टेड, और उस पे जो अरेस्ट का मेमो है उस पे जिस पर्सन को हमने अरेस्ट किया है उसके भी काउंटर साइन होने चाहिए। ठीक है, and after that the arrested person has right to meet the advocate of his choice which is defined under section 41D। So 41D says that when any person is arrested and interrogated by the police officer, आप अरेस्ट करके लाए, आपने इंटरोगेशन स्टार्ट किया, देन ही शैल बी इंटाइटल्ड टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ये उसका राइट बनता है कि वो अपनी चॉइस के एडवोकेट से मिल सके, बात कर सके, ताकि वो अपना क्या है पक्ष रख सके ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन ऑल्सो ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, थ्रू नॉट थ्रू आउट इंटरोगेशन, इंटरोगेशन के दौरान या फिर इंटरोगेशन के दौरान। ठीक है, so this is the right of arrested person। So I think it would be clear to uh, it would be very helpful। So now there is some protection which is provided, protection from the arrest which is provided to the member of the armed forces which is defined under section 45। So notwithstanding anything contained in section 41 to 44, 44 41 से लेके 41 तक, हम 44 तक क्या हमको अरेस्ट के प्रोसीजर दिए हुए हैं। 41 में अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। 42 में क्या दिया हुआ हमको, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड एड्रेस रेजिडेंस। 43 में अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, एंड 44 में अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। सो ऑल दीज प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू द पर्सन who is belonging to the armed forces। So this is the protection which is given to the member of armed forces, चाहे वो हमारा नेवल का हो, नेवल फोर्सेस से हो, चाहे हमारा एयर फोर्सेस से हो, या फिर हमारा आर्मी फोर्सेस से हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 1 शैल अप्लाई टू द such class or category of the members of the forces charged with the maintenance of public order as may be specified therein। So this protection is not only available to the armed forces of the central, but the state government may give the protection to the forces of the state also, such as police officials। ठीक है, so these are the protection which is provided for the army persons who from arrest। I think it would be clear। So now arrest how made, which is defined under section 46। So अरेस्ट कैसे करना है, तो अरेस्ट के लिए क्या है कि द पर्सन हु इज गोइंग टू मेक द अरेस्ट ऑफ एनी ऑफेंडर ही हैज पावर, और वी कैन से दैट ही during while making the arrest he shall actually touch or confine the body of the person to be arrested। जिस पर्सन को कोई भी ऑफेंडर है, यदि पुलिस ऑफिसर या कोई भी जो भी पर्सन एम्पावर्ड है वो अरेस्ट करने जा रहा है, तो उसको ये राइट है कि वो उसकी बॉडी को टच कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है,
ठीक है, अनलेस देयर बी ए सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। यदि वो खुद से बोल देता है या फिर एक्टिवली ये दिखाता है कि ही इज रेडी टू गिव गिव द अरेस्ट, तो उस केस के अलावा पुलिस ऑफिसर के पास या जो भी ऑफिसर एम्पावर्ड है उसके ही हैज द पावर टू टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सच पर्सन फोर्सेबली रजिस्ट। अब क्वेश्चन आता है कि वो अरेस्ट नहीं देता है या फिर उससे भागने की कोशिश करता है, तो उस केस में क्या हो सकता है? तो इन दिस केस such police, the police officer or any other officer which is going to make the arrest may use all means necessary to effect the arrest। पुलिस ऑफिसर को ये पावर है कि वो सारे तौर तरीके साम दाम दंड भेद अपना सकता है उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, बिकॉज द मेन मोटो इज टू अरेस्ट द पर्सन। But this provision is applicable in two cases only, where the one is where the offense which is committed by the offender is punishable with death और punishable with imprisonment or of life। यदि उसने कोई ऐसा ऑफेंड किया है, उसके अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन मिली है, कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए डेथ पेनल्टी है या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, उस केसेस में ये सारा कुछ कर सकता है। ठीक है, आपने सुना होगा अभी रिसेंट में कि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। पुलिस पकड़ने गई, वो भागने लगा, उसको अरेस्ट नहीं दे रहा था, तो पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दिया, ठीक है, या फिर उसको पीटा। तो इन एनी वे पुलिस ऑफिसर हैज पावर टू अरेस्ट एंड अरेस्ट द पर्सन who has committed the offense which is punishable with death or imprisonment for life। So there are some landmark judgments on the arrest in Devaman Upadhyay versus State AIR 1963। इस केस में क्या होता था? अक्यूज अप्रोच द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द ऑफिसर, he offered to give information leading to the discovery of fact and also having a bearing on the charge which might be made against him। So it was held by the Supreme Court that he had submitted to the custody by action placed within the meaning of subsection of this section। तो इस केस में क्या होता है? अक्यूज खुद ही पुलिस ऑफिसर के पास, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, जो आईओ था उस केस का, वो खुद ही उसके पास इंफॉर्मेशन देने गया था। ठीक है, उसने खुद से ही फैक्ट बताए थे और खुद बताया था कि हाँ उसने ऑफेंस किया है। ठीक है, और तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसके एक्शन से लगता है कि ही हैज सबमिटेड देयर इज सबमिशन टू द कस्टडी, तो उसने खुद से ही उसको कस्टडी दे दी है, तो वहां पर उसको बल प्रयोग करने की पुलिस ऑफिसर को कोई आवश्यकता नहीं है। सेम केस जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 एंड डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल AIR 1997। तो डी के बासु के केस में तो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी कि अरेस्ट कब हो सकता है। यदि फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो फीमेल ही पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, और फीमेल को आप सनसेट के बाद और सनराइज तक अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कितना आप फोर्सेज यूज कर सकते हो। सो दे आर सो मेनी गाइडलाइंस व्हिच इज इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब अरेस्ट करने गए, अब तो आप क्या क्या सर्च कर सकते हो? ठीक है, तो 47 में दिया हुआ है। तो यदि आप कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जाता है, उसके पास ये पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो उसके जो प्रमाइसेस है जहाँ पे ऑफेंडर है उसमें एंटर कर सकता है। ठीक है, उसको लगता है कि हाँ फैक्ट की डिस्कवरी के लिए या फिर केस में हेल्पफुल हो सकता है, तो वो उसके घर की तलाशी भी ले सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो I think it would be very helpful for you। So after now we are talking about the rights of arrested person, which is the third agenda of this lecture। So first, the first right, which is already we are discussed, right to meet of the advocate of his choice during the interrogation, which is defined under section 41। Second है हमारा एग्जामिनेशन
by the medical examination by the CMO or any authority, मेडिकल एग्जामिनेशन में होना है। देखिए कोई भी पर्सन को आप अरेस्ट करोगे तो ही इज द पर्सन ऑफ मजिस्ट्रेट और गवर्नमेंट, उसको हमको क्या है हेल्दी सिचुएशन में रखना है, ठीक है, उसका वेट करना, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना, वो फिट है या नहीं है, तो ये सब भी करना है, ठीक है। इसके बाद उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, उसकी हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, जो हमको 55 में दिया हुआ है, ठीक है, 55A में दिया हुआ है। फिर जो मेन राइट आता है हमारा वो ये आता है 57 में, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। जिस किसी पर्सन को यदि किसी पुलिस ऑफिसर ने या फिर कोई भी अथॉरिटी ने अरेस्ट किया है, which is empowered by law, who is empowered by law, so he cannot detain such arrested person more than 24 hours। यदि वो ऐसा करता है तो वो अरेस्ट क्या है, इलीगल डिटेंशन डिक्लेयर कर देगा कोर्ट, और यदि इलीगल डिटेंशन कर दिया है तो जो भी कंसर्न ऑफिसर है वो उसके लिए लाइबल होगा। So section 57 says that no police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under the 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स से आप किसी को डिटेन कस्टडी में डिटेन नहीं रख सकते। हाँ, उससे जो जर्नी का टाइम है, जो जर्नी का टाइम है, कौन सा जर्नी का टाइम, कि 24 आवर्स में क्या है, पुलिस ऑफिसर को उस अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट के यहाँ पे पेश करना है, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन से लेके और मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक जो टाइम लगता है उसको क्या है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। सपोज 2 आवर्स का लगा तो उसको एक्सक्लूड करके वो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वो अरेस्ट क्या है, इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट है discharge of person apprehended. So 59 says that no person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his on bond or on bail or under the special order of a magistrate. So उस पर जो जिसको अरेस्ट किया है उसको या तो वो बेल पे छोड़ सकता है, वो बॉन्ड भर दे, या फिर मजिस्ट्रेट ने कोई स्पेशल ऑर्डर दिया है कि ही शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द कस्टडी, तो उसी केस में उसको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। अदर विदाउट बेल और बॉन्ड हम उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो ये प्रोसीजर है हमारा कि उसको बेल बॉन्ड भरना ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि यदि कोई ऑफेंडर कस्टडी से भाग गया, ठीक है, तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने की क्या पावर है, क्या प्रोसीजर है। तो सेक्शन 60 में दिया हुआ है कि इफ ए पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप्स और इज रेस्क्यूड, so the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him any place in India। तो उसको क्या है, वारंट की जरूरत नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ सेक्स, ठीक है। तो जो भी अरेस्ट होगा, last but not least, all the arrest to be made strictly according to the code. What is the code? The Criminal Procedure Code 1973. So all the arrest has to be made strictly according to the provisions of the 1973 CRPC 1973। तो जो भी अरेस्ट होगा वो CRPC के प्रावधानों के अनुसार ही होगा, ठीक है। So this is all about the arrest. So we can summarize this. So first of all, we are we have discussed what is the meaning of arrest, what is the scope. After that, we have discussed the types of arrest. First is arrest by uh, police officer without warrant, which is given under section 41 of CRPC 1973. Second, arrest by private person, which is given under section 43 of CRPC 1973. And fourth is arrest by magistrate, which is given under section 44 of CRPC. And after that, we have discussed the arrest
arrest how made as per the section 46. ठीक है. And after that we are discussing the procedure after the arrest, and last we are discussing the rights of the arrested person which have been arrested by the police officer or any other person which is who is empowered or who is authorized by the law to make the arrest. So this is all about the arrest, and we have discussed the leading case laws, DK Basu versus State of Gujarat, DK Basu versus State of Bengal, Joginda Kumar versus State of UP. So I think all these provision will be very helpful for all of us. ठीक है. So this is all about the arrest. So thank you very much.